ऐसा मटेरियल चाहिए जो एंटी कोरोसिव हो। इसका मतलब है कि मटेरियल अब आपको हाई स्ट्रेंथ चाहिए, स्पेसिफिक वी रिक्वायर्ड द मटेरियल दैट शुड हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। तो उसका नाम दिया गया सुपर एलॉय, द एलॉय व्हिच बिहेव सुपरबली, है ना, जिस वही एलॉय है जिसका बिहेवियर सुपर हो, सुपर which can withstand in harsh condition, harsh condition मतलब टेम्परेचर वेरी हाई, टेम्परेचर वेरी लो, है ना, वेरी हाई एंटी कोरोसिव, है ना, हाई फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस। सो सुपर एलॉयज उसका नाम दिया गया। इट वाज इन्वेंटेड समवेयर इन 1940s, वहां से इस टर्मिनोलॉजी आया। इट मे बी ऑफ निकल बेस, आयरन बेस्ड एंड कोबाल्ट बेस्ड। सो एक रिसर्चर ने कहा कि 20th century belongs to alloys but 21st century belongs to super alloys। आज के दिन मतलब now this Good afternoon, century belongs student. to super alloys, right? Good afternoon, student. Good afternoon, sir. Okay. So this is one just one example, right, where we can see the super alloys. Here you will see this is the nickel base has the contribution of around 47%. 20. Okay, student. Today we will discuss about the numerical problems on 3D stresses and the relationship between EG and K. Okay. So अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल किए थे इस पे, एंड टुडे हम लोग अभी और फर्दर न्यूमेरिकल कितने हो सकते हैं, इस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अभी हम लोग जो बात की है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फोर्स अप्लाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्ट्रेस डेवलप हुआ था या उसमें जो चेंज आए थे वॉल्यूमेट्रिकल चेंज, है ना, वो हम लोगों ने फाइंड किए थे। बट टुडे विल डिस्कस अबाउट the information about 3 types of stresses if we are applying or we are subjected is our body is subjected to 3 forces like px, py and pz. So then how can we find out the value of stresses and how can we find out the value of volumetric strain on the volumetric change in that object. So today we'll discuss about it. Okay, thank you. So now I'm going to start. First of all, I have to revise again that numerical we have completed in previous lecture, that is another numerical which is related to previous lecture, that is problem number 2.4. A steel bar of 300 mm long, 50 mm wide and 40 mm thick is subjected to a pull. Pull means tensile force, that is 300 kilonewton in the direction of its length. So that force is acting in the direction of its length, and determine the change in volume, that is we have to find out the value of del V, and here the value of Young's modulus is 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square, and the value of Poisson ratio, that is 0.25. Okay, so that is our numerical which is related to my previous lecture. So now you have to solve it accordingly, that we have completed in last lecture. Accordingly you have to say, you have to complete it. Like suppose that is a bar. Okay, that is a bar, that is bar. I have to properly draw it, that is bar, having dimensions 300 mm length, 300 mm length, having dimensions 300 mm length, that is 300 mm, the length is 300 mm, and the 50 mm wide, it means the wide means that length, that is wide, and the thickness means 40 mm thickness, that is 40 mm thickness. So now I am going to write the value of length L equal to 300 mm. Here I have to write wide means width, that is 50 mm, and the thickness, that is 40 mm. 40 mm. Okay dear, so first of all
there is a force which having 300 kilonewton amount. So there is a force. There is a force, that is the force. Its value is 300 mm and it's working along the axis of this body, that is, yes, that is 300 kilonewton. Everyone able to see my screen? अनुराग सिंह, स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? कृष्णकांत, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रही है सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको सबको? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Okay, dear. So now you have to complete this question. This is related to previous lecture. How can you find out the value of volumetric change or change in volume of this component or of this object? Anyone tell me? Any one of the student tell me how can you find out the value of change in volume? Sasikant is available here. Sasikant Sharma. Sasikant Sharma, yes. How can you find out the value of change in volume of this component? Open your mic, Sasikant. Anyone? शशिकांत का शायद प्रॉब्लम है कुछ. ओके, अंकुर, कैन यू एक्सप्लेन इट? Yes, sir. Yes, Ankur, tell me, how can you find out the value of change in volume of this component? Tell me, Ankur. सर न्यूमेरिकल थोड़ा शॉर्ट में न कराओ. गिवन डाटा इज, यस, क्या सर ये कह रहा था न्यूमेरिकल थोड़ा शॉर्ट में हो सकते हैं. बेटा? फॉर्मूले को शॉर्ट में कैसे करोगे बताओ? नहीं सर, क्वेश्चन बहुत बड़े होते जाते हैं, ये पेपर में बहुत दिक्कत करेंगे. सर इसका वो चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम. वेरी गुड. इट मींस चेंज इन वॉल्यूम. आपको मालूम है, अभी आपको मालूम है डीवी अपॉन वी. डीवी अपॉन वी आप फाइंड कर लिए. Yes, sir. आपको यहाँ फाइंड करना है डीवी, है ना? तो डीवी फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? डीवी अपॉन वी का वैल्यू फाइंड चाहिए आपको, ठीक है? और डीवी अपॉन वी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. डीवी अपॉन वी मींस वॉल्यूमेट्रिक strain. Yes, sir. So Yes, sir. that can we easily find out the value by using the formula, that is Ex plus Ey plus Ez. We can easily find out the value of a volumetric change or volumetric strain. That will be Ex plus Ey plus Ez. Yes. Okay. So simply the formula will be last time क्या बताया था मैंने आपको? dl upon l into 1 minus 2 mu. Mu means poison ratio. 1 upon m या poison ratio, है ना? ओके सर. Okay, that is the formula to find out the value of volumetric strain.
Okay, so here you can easily find out the value of volumetric strain. It will be dl upon L. So first of all, we have to find out the value of dl because dl is available in the question. So now you have to find out the value of dl. What will be dl? Ankit, how can you find out the value of dl? Ankit, tell me. How can you find out the value of dl? dl means change in length. सर Yes, sir. P upon A ही हो जाएगा इसका, P upon A P डेल का। upon A ही होगा, हाँ मालूम है कि नहीं है तरीके से? PL नहीं upon A सर। नहीं होगा? हाँ P upon A सर। हाँ PL upon A क्या हाँ होगा? सर, PL upon AE। PL upon AE। Yes, sir. PL फॉर्मूला था ये वाला? हाँ ये फॉर्मूला था ना? सर। या फिर मैं कह सकता हूँ कि हम सिंपली हाँ। निकाल दें डायरेक्टली, हम बात कर लें डायरेक्टली DL upon L की, तो Yes, sir. ये क्या होगा DL आपका? upon- DL upon L will be P upon AE। Yes, sir. हाँ P upon A ही होगा ये वाला। वेरी गुड। तो ये क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. यस सर। Okay, so now find out the value of A. Here P is given, E is given. So what will be the value of A? Sir. A का वैल्यू क्या होगा? एरिया बताओ मेरे को, निकालना पड़ेगा ये सर। निकालो। एरिया कौन सा लेंगे पहले बताओ बेटा, एरिया हम कौन सा लेंगे बताओ पहले, एरिया हम कौन सा लेंगे इसमें से? कोई बताए मेरे को? अंकित कुमार बताओ। अंकित, अंकित बेटा बताओ कौन सा लेंगे एरिया? हम लोग कौन सा एरिया यूज करेंगे यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू? स्टूडेंट देखिए बेटा, एरिया हम कौन सा लेंगे? ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला। ये वाला एरिया लेंगे हम। क्लियर है? ये वाला एरिया लेंगे हम। ये वाला एरिया हम क्यों लेंगे पता है सबको? बताओ बेटा। हाँ, कौन सा एरिया लेंगे? ये वाला एरिया लेंगे ना हम, जो मैं एच कर रहा हूँ। बेटा पता है किसी को? नहीं पता कि हम एरिया कैसे लेंगे? पता नहीं सर। क्यों नहीं पता अंकुर? सर लेंथ हो रहा सर उसकी। बेटा फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स सर, फोर्स कौन से एरिया पे लग रहा है? फोर्स कौन से एरिया पे लग रहा है? जो फोर्स पी लगाए वो कहाँ लग रहा है? दिखाई दे रहा है आपको कहाँ लग रहा है फोर्स? तो अनुराग बताएं बेटा। बेटा हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं? वो हम अप्लाई कर रहे हैं उस क्रॉस सेक्शन पर जो आपका 40x50 का है ना? तो हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं और जिस सरफेस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, हमें एरिया उसी सरफेस का लेना होता है। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ये वाली बात? यस नहीं है बताओ। हमेशा हम फोर्स का जो एरिया लेंगे वो वही लेंगे जिस सरफेस पर आपका फोर्स काम कर रहा है। यस सर। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए।
always we have to take the area of that section or that surface where the force is acting. Okay, so now the force, according to the applied force, the area will be A equal to 40 into 50. 40 into 50 mm square. So that will be 2000 mm square. Okay, clear है बेटा सबका? That is clear? That is clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So now we can easily find out the value of dl upon l. So what will be dl upon l? What will be dl upon l? change in length upon original length. What will be dl upon l? Formula क्या है dl upon l का? अभी जो लिखा है मैंने. P upon upon A. A. तो Yes, sir. P means force. Force कितना है आपका? 3. कितना है? 3 लाख न्यूटन. Yes, sir. ओके, ठीक है, ये आपका फोर्स हो गया. अपॉन एरिया. एरिया कितना है आपका? 2000 mm स्क्वायर. 2000 mm square. इनटू ई कितना है आपका? 2 into 10 to the power 5. 10 की पावर Newton per 5. mm square. नाउ सॉल्व इट. सॉल्व कीजिए इसे. Okay. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dl अपॉन l? चैट बॉक्स में लिख दीजिए वैल्यू जितना आ रहा है. कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए और तुरंत चैट बॉक्स में लिखिए अपना वैल्यू कितना आ रहा है, ताकि सभी लोगों को दिखता रहे वो. यस स्टूडेंट, बताइए कितना आया वैल्यू? अभी किसी का आंसर नहीं आया शायद मेरे हिसाब से. ये 30 कौन बता रहा है मेरे को भाई? अंकुर, चेक करो बेटा दोबारा से, क्या कर रहे हो आप? कृष्णकांत दीक्षित. Okay, so value will be 0.0075. Okay, that will be the value of dl upon l, that is linear strain. इसे हम लोग linear strain भी बोलते हैं. क्लियर है? हाँ, गुड. 75 into power 5, वेरी गुड. हिमांशु सही है ये भी. और कोई बेटा जिसको डाउट आ रहा हो भी? ठीक है. सो नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा? फॉर्मूला क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का? dl अपॉन l इंटू 1 माइनस 2 म्यू. म्यू मतलब मेरे पास साइन नहीं लिखने की, तो मैंने पॉइजन रेशियो लिख दिया डायरेक्टली उसमें. ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी volumetric strain will be equal to EV. EV means del V upon V. EV equal to DL upon L. DL upon L का वैल्यू कितना है आपका? 0.12375 into 1 माइनस, ब्रैकेट में लिखना है 1 माइनस 2 इंटू 0.25. So now you can solve it again.
इसका वैल्यू क्या होगा बताइए मेरे को जल्दी। तो ईवी क्या होता है हमारा, ईवी होता है डीवी अपॉन वी। ठीक है, ईवी क्या होता है हमारा, डीवी अपॉन वी तो होता है। यस सर। ओके, तो क्लियर है सबको, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से डीवी अपॉन वी का वैल्यू आ गया एक्चुअली मेरे पास। किसका वैल्यू आ गया, डीवी अपॉन वी का वैल्यू। तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे तब बताएंगे कितना आया आंसर इसका। बताओ कितना आया। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए बेटा। कैलकुलेटर का यूज है इसमें, कुछ नहीं करना है आपको, बस मल्टीप्लाई करना है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। तो इट विल बी 375, that will be correct answer। 0.000375, that will be correct answer। So now we can easily find out the value of dv। what will be dv? dv क्या होगा अब यहाँ पर, dv क्या होगा, v का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, बस यही तो होगा। 0.375 इंटू v। अब v क्या होगा, v मतलब वॉल्यूम, v मतलब वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना है, v मतलब वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम क्या होगा, LVH। वॉल्यूम क्या होगा आपका यहाँ पर, LVH, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। तो दैट विल बी इंटू L मतलब 300 इंटू B मतलब 50 इंटू H मतलब 40। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आया, इंटू L इंटू V इंटू H। सॉल्व कीजिए बेटा, कितना आया आंसर बताएं मेरे को। वेरी गुड, कौन है ये बच्चा, कृष्णकांत, वेरी गुड कृष्णकांत। 225 mmq, 225 mmq, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक चेंज निकाला है मैं, तो दैट विल बी mmq। वेरी गुड, वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड अंकुर, वेरी गुड रमन, वेरी गुड अमन, प्रभाकर साहू, वेरी गुड अविनाश दुबे, वेरी गुड। एंड अगेन, और कौन है, अजय कुमार, वेरी गुड, देवेश, वेरी गुड। तो क्लियर है ये वाला न्यूमेरिकल, कितना शॉर्ट कर दिया मैंने, बहुत शॉर्ट हो गया ना तो न्यूमेरिकल ये। तो जस्ट आपको बस फॉर्मूला उसका याद है, जस्ट आपको फॉर्मूला उसका याद है। सो नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी वन इक्वेशन। ठीक है, तो आपको जो भी इक्वेशन की वैल्यू चाहिए या जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, यदि आपको फॉर्मूला उसका मालूम है तो। या फिर हम भी कह सकते हैं कि हमें फॉर्मूला नहीं पता होता है, तो उस केस में हमें जनरल फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे कि आपका हुक्स लॉ वाला फॉर्मूला है, जैसे कि आपका स्ट्रेन वाला फॉर्मूला है, जैसे कि आपका चेंज इन लेंथ वाला फॉर्मूला है, तो फिर आपको सेपरेटली सारे फॉर्मूले का अलग अलग यूज करना होता है। ठीक है, तब आप जाके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हो। अब यहाँ क्या है कि आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में किया, अगला न्यूमेरिकल को मालूम पता चल गया कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो डायरेक्टली आप वही फॉर्मूला यूज कीजिए और अपना वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ये एक बहुत इजी वे हो जाएगा, और इस कंडीशन में आप अपने न्यूमेरिकल को हार्डली 10 मिनट्स में, मतलब मैक्सिमम 10 मिनट बता रहा हूँ मैं, कि हार्डली 10 मिनट में आप न्यूमेरिकल को, कितना ही बड़ा न्यूमेरिकल हो, आप उसे सॉल्व कर पाओगे। बस कैलकुलेटर का थोड़ा सा याद रखना है आपको, कैसे हमें उससे ऑपरेट करना है। बकाया सारा चीजें बहुत सिंपल हैं। सो नाउ अब इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और मैं चल रहा हूं अगले टॉपिक के लिए। दैट न्यू टॉपिक इज दैट व्हेन वी आर अप्लाइंग or our object is subjected to 3 different types of forces like px force, py force and pz force। यदि हमारा फोर्स x, y and z तीनों डायरेक्शन में लगा हुआ है, then how can you find out the value of volumetric strain or volumetric change of that object।
So that is our next topic. So now I am going to next topic. Next topic is volumetric strain in a rectangular bar. That is my next topic. How can you find out the volumetric strain in a rectangular bar which is subjected to 3 different types of forces along the axis of x, y, and z? So that is the consideration. Consider a rectangular bar or rectangular block is subjected to 3 forces system, that is x, y, and z direction. Dimensions are x, y, and z. सपोज हमने मान लिया कि उसके डायमेंशंस क्या है, एक्स वाई जेड है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, दैट इज माय ऑब्जेक्ट वेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई द 3 force system, that is x, y, and z, and the dimensions of the system is this. The length is x, and that is height is y, and the width is x. Okay, so according to these dimensions we can easily find out the value of volume of block, that will be v equal to x, y into z. Okay, again you know that the volume of rectangular bar is equal to length, width, and height. Okay, so the volume of this block will be x, y, and z, multiply of x, y, and z. So now taking the log of both sides, so we have log v. यदि मैं दोनों इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन का log लेता हूं तो log में क्या होता है, आपका जो मल्टीप्लाई होता है वो ऐड हो जाता है ना, तो यहाँ पर log को v को मैंने log लिया तो log v का आपका ये v का log आपका log v आ गया, x, y, z का log आपका आ गया log x प्लस log y प्लस log z. ओके, मैं इनका log ले रहा हूँ तो ये क्या होता है आपका प्लस हो जाते हैं, जो मल्टीप्लाई होते हैं, जो डिवाइड आपका डिवाइड होते हैं, जो सॉरी प्लस होते हैं, जो आप मल्टीप्लाई होते हैं, और डिवाइड वाला क्या होता है माइनस हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये x, y, z जो हुआ आपका क्या हुआ, यहाँ पर ये अपने log निकाल दिया, तो log x प्लस log y और प्लस log z. नाउ अब मैं बात करूँ डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन. यदि मैं इस इक्वेशन को लैग वाली इक्वेशन को करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, तो log का आप डिफरेंशिएट करते होंगे तो मालूम होगा आपको log x बराबर क्या होता है, 1/x होता है. log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है ना. यस सर. हाँ, तो वैसे क्या हो जाएगा ये, यदि मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/v into dv equal to 1/x into x dx plus 1/y into dy plus 1/z into dz. So that will be the differentiation of above equation. So no, you know that what with the value of dv upon v. dv upon v is also known as volumetric strain. dx upon x, it means longitudinal strain. dy upon v, the strain in y direction, and dz upon z means the strain in z direction. So we can easily say that the Ex, but you know that dv upon v equal to change in volume upon original volume, that will be volumetric strain. Similarly, dx upon x equal to change in dimensions in x or original dimensions of x, that is the strain in x direction, it will be denoted by Ex. And similarly, dy will be dy upon y will be Ey, and dz upon z equal to strain in z direction, that will be denoted by Ez. ओके ओके स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है? चैट बॉक्स में यस नो कर दो भाई, जिसका क्लियर ना हो उससे पूछ ले तुरंत. अभी डेरिवेशन में यहां तक कर तो बताओ. सर एक बार सर कर देना सर, डिस्कनेक्ट हो गया था सर. सर हाँ, किसका रह गया? हाँ बताओ. जो v बराबर x y प्लस z दिया है, ये प्लस में कैसे वही वैल्यू मल्टीप्लाई में? हाँ देखो बेटा, जब भी हम मल्टीप्लाई का लॉग लेते हैं तो लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में जो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं वो प्लस हो जाती हैं और जो डिवाइड होती हैं वो माइनस हो जाती हैं. माइनस हो जाते हैं. यदि ये लिखा होता है x अपॉन y तो ये आता है log x माइनस log y, और यदि ये लिखा हुआ है x इंटू y तो इसका मतलब ये हो गया log x प्लस log y. ठीक है, ये नोट कर लीजिए. You have to note it. If we are going to take the log of any value, if they are multiplying, then we have to add them, and we are going to log of dividing values, then it will be minus. Okay, so ये क्या होगा आपका x into y into z है, तो ये आपका हो जाएगा log x plus log y plus log z. और log का जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होता है आपका 1/में चला जाता है, तो 1/x
1/y 1/z। अब x का या y का या z का हमारे पास वैल्यू तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे उसे dz dy और dx वहीं के वहीं रख देंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन को। तो अब मैंने वहीं से किया जो आपका डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। अब यहाँ आपका जो dv अपॉन v1 क्या आ रहा है, या फिर dx अपॉन x है, या dy अपॉन y है, या dz अपॉन z है, तो ये क्या है आपके, ये आपके स्ट्रेन हो गए उस पर्टिकुलर डायमेंशंस में। dv अपॉन v तो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, मगर x की बात करूंगी तो क्या होगा, स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। y के लिए क्या होगा, dy अपॉन y इक्वल टू स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, and similarly the dz upon z will be strain in z direction. It will be denoted by ex, ey and ez. So now you know that what will be the volumetric strain. What will be volumetric strain? It will be dv upon v equal to ex plus ey plus ez. Okay. बेटा माइक ऑफ कर लीजिए यदि आपको प्रॉब्लम वो हो रहा है तो, डिस्टर्बेंस हो रहा है आपके पास तो, ठीक है। सो नाउ तो dv अपॉन v क्या होगा आपका, इन तीनों का हम जोड़ देंगे, मतलब इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल के आ जाएगा। तो नाउ तो नेट टेंसाइल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, यदि मैं बात करूं कि x डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन कितना होगा, x डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन कितना होगा, तो वो क्या होगा आपका, हम बात करेंगे ex की। तो ex क्या होगा, ex विल बी सिग्मा x अपॉन e। सिग्मा x अपॉन e क्या है, सिग्मा क्या है आपका, सिग्मा आपका होता है स्ट्रेस, और e क्या है आपका, यंग्स मॉडुलस। तो ये जो हुक्स लॉ वाला फॉर्मूला था वो आप दोबारा से याद कर लीजिए। हुक्स लॉ वाला फॉर्मूला क्या था आपका, कैपिटल E इक्वल टू स्मॉल p या सिग्मा अपॉन स्मॉल e, ये था ना फॉर्मूला। तो वहीं से आपका आ गया कि x डायरेक्शन में जो आपका स्ट्रेन आपका जो होगा, x डायरेक्शन में जो आपका स्ट्रेन होगा ड्यू टू लोडिंग ऑफ x डायरेक्शन, जो x डायरेक्शन में आपने लोड लगाया है उसके थ्रू जो आपका x के डायरेक्शन में ही स्ट्रेन होगा, दैट विल बी नोटेड बाय सिग्मा x अपॉन e। एंड अब जब x में आपका चेंज हो रहा है तो चेंज आपका y में भी होगा और आपका z में भी होगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो y डायरेक्शन में या z डायरेक्शन में जो आपने स्ट्रेस लगाया हुआ है, दोबारा सुनना, स्ट्रेस जो लगाया हुआ है मतलब जो फोर्स लगाया हुआ है, उस फोर्स से जो स्ट्रेस आपका इंड्यूस्ड हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उसके थ्रू भी आपका कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा एक्स में। तो वो कैसे चेंज होगा, वो आपका होगा, कैसे चेंज होगा आपका, वो होगी आपकी लेटरल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं म्यू से। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट निकल के आएगा आपका Ex इक्वल टू सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा y अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन ई। तो यहाँ पर म्यू इन दोनों में कॉमन है और ई तीनों में कॉमन है। तो मैंने क्या किया, सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू कॉमन लिया, तो आपका वैल्यू क्या आ गया, सिग्मा y प्लस z अपॉन ई। ये आपका वैल्यू निकल के आ गया इस इक्वेशन का। अच्छा, अब किसी को डाउट शायद हो यहाँ पे होगा कि सर हमने ये म्यू y क्यों लिया या म्यू z क्यों लिया, ठीक है, तो y क्यों लिया या म्यू z क्यों लिया। तो बेटा देखो, आपने x में फोर्स लगाया, तो x में फोर्स लगाने पर जो आपने फोर्स लगाया x में, मान लो px लगाया होगा, या उस px के थ्रू सिग्मा x आपका स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा या इंड्यूस्ड हुआ होगा, तो उससे तो आपका स्ट्रेन हो गया सिग्मा x अपॉन ई। मगर कहीं ना कहीं जब आप y में फोर्स लगा रहे होंगे तो y के फोर्स के थ्रू आपका x डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, y में लगाया है फोर्स मगर चेंज तो उसका x में भी आ रहा होगा। तो x में चेंज कैसा आ रहा होगा, x में आपका चेंज आ रहा होगा लेटरल चेंज, मतलब लेटरल स्ट्रेन होगा। और लेटरल स्ट्रेन कितना कितना होगा, वो आपका न्यू सिग्मा y अपॉन ई। और वैसे ही z वाले से जो स्ट्रेन आ रहा होगा लेटरल स्ट्रेन x में, वो कितना होगा आपका न्यू सिग्मा z अपॉन ई। तो ये ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ex की। अब जैसे आपने ex की वैल्यू फाइंड आउट की, मतलब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो आपने सिग्मा x पहले लिया, मगर जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आप सिग्मा y पहले ले लोगे, और z की निकालोगे तो आप सिग्मा z पहले ले लोगे। तो ये आपका होगा इस तरीके से। सिमिलरली सिग्मा y ey निकालोगे तो आपका ey विल बी इक्वल टू सिग्मा y अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा x प्लस सिग्मा z अपॉन ई। या फिर आप जाओगे निकालने के लिए Ez का वैल्यू, तो इट विल बी सिग्मा z अपॉन ई माइनस म्यू
सिग्मा जेड एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई। तो याद रखना कि हम एक्स की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो आपका एक्स पहले आ जाएगा, बाकी सब बाद में आएंगे म्यू के साथ। यदि वाई की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो वाई पहले आ जाएगा, बाकी सब बाद में आएंगे म्यू के साथ। और यदि जेड की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो जेड पहले आएगा, बाकी सब बाद में आएंगे एक्स के म्यू के साथ। तो एम आई क्लियर और नॉट? यहाँ क्लियर है, यहाँ क्लियर है। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, एक का याद है तीनों का याद हो जाएगा। यस सर, आ गया सर। फॉर्मूला यदि एक का याद है तो तीनों का याद हो जाएगा आराम से। क्या करना है, जिस डायरेक्शन की आप स्ट्रेन निकालना चाहते हैं उस वाले स्ट्रेस को पहले ले लीजिए, बकाया बचे हुए स्ट्रेन को, आपको स्ट्रेन की वैल्यू को आप म्यू के साथ रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो लेटरल स्ट्रेन होंगे। मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन में आपका लेटरल स्ट्रेन नहीं होती, बकाया सारे डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन होती है। चाहे हम यदि बात कर रहे हैं एक्स में लगा रहे हैं फोर्स, तो एक्स में आपका लीनियर स्ट्रेन होगा, बकाया सब में वाई में जेड में वो आपका लेटरल स्ट्रेन होगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर ये किया है, ठीक है। इसे रटना नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट है ये हमारा, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, मैं बात कर रहा था dv अपॉन v की, तो मैं क्या करूंगा, इस ex को, इस ey को और ez को, ये ex ey और ez की तीनों वैल्यू जो आपके आई, ये वाली लास्ट में आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाली वैल्यू ex की वैल्यू ये आपकी आ गई है, ey की वैल्यू ये आपकी और ez की वैल्यू ये आपकी। तो इन तीनों को आप यदि जोड़ोगे यहाँ इस इक्वेशन में रखोगे, इस वाली इक्वेशन में, तो क्या होगा आपका dv अपॉन v इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन e, सब में से कॉमन आ गया, सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। जब हम एक फोर्स लगा रहे थे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा एक्स आ रहा था, मगर दो फोर्स लगाओगे तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आएगा, और तीन फोर्स लगाओगे तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड तीनों ही आएंगे। क्लियर है? किस किस को क्लियर हो गया? किस किस को क्लियर हो गया वाला? हेलो स्टूडेंट्स, am I audible or not? यस सर। यस सर। ओके, तो अब ये क्लियर है ना, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है इसमें? सर ये dv इक्वल टू, ये बता दो सर, क्या बताया सर, फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है x की में, कौन सा वाला सर बताओ, कहाँ यहाँ से लास्ट सकता ये वाला बता। लास्ट बताओ, स्लैंग पढ़ के बताओ मेरे को, कौन सा वाला? लास्ट वाला सर, dv अपॉन v इक्वल टू 1 बेटा अपॉन e। ये इक्वेशन थी ना आपकी पहली, मतलब टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है आपका, तीनों को जोड़ देंगे ये तो होता है। यस सर, यस सर। तो dv अपॉन v क्या हुआ आपका, ex प्लस ey प्लस ez होता है। अब यदि Yes, मैं sir. ex की वैल्यू जो आई है वो, ey की वैल्यू आई है Yes. वो, और ez की वैल्यू आई है वो तीनों को, मतलब ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू और प्लस ये वैल्यू करूंगा, तो आप जोड़ इन दिया। तीनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपको ये निकल के आएगा। आप इसे चेक कर लीजिए, ऐड करने के बाद आप कैसे Yes, करोगे, sir, yes. कर लो ऐड, Yes. ऐड कर लीजिए ऐड एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर हम जब भी बात करेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की रेक्टेंगुलर बार के लिए, और वहां आपका तीन फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं px py pz, then we have to apply this formula dv equal to 1 upon e into sigma x plus sigma y plus sigma z into 1 minus 2 mu, ठीक है। तो ये बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। या तो हम निकालें कि एक एक फॉर्मूला यूज करके निकालें, या फिर सिंपली हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज कर लें और इससे निकाल दें, तो ये हमारा बहुत सिंपल तरीका है। ओके ओके स्टूडेंट, चले आगे। यस सर, यस सर। ओके, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन अ सर्कुलर बार। जैसे हमारा रेक्टेंगुलर बार था वैसे सर्कुलर बार भी हो सकता है। तो कैसा हो सर्कुलर बार? मान लीजिए एक सर्कुलर बार के मैंने कंसीडर कर लिया कि एक सिलेंड्रिकल रॉड है व्हिच इज सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल लोड T, ठीक है। और अब इसमें हमारा डायमीटर D है और लेंथ का L है, तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का हो गया। अब डायग्राम में देखिए आप, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने पर हमारा लेंथ में तो इंक्रीमेंट हो रहा है, और डायमीटर जो हमारा D था वो कम डिस्टरबेंस हो रहा है सर। सर आवाज कैसी आ रही है सर? ये डिस्टरबेंस हो रहा है, किसी और बच्चे की आवाज आ रही है शायद, अब नहीं आएगी शायद, आ रही है अब? नहीं आएगी अब। चलिए
मोस्टली स्टूडेंट आप लोग चैट बॉक्स का यूज कीजिए, अपने माइक ओपन तब कीजिए जब मैं आपसे बोलूं ओपन करने के लिए, ठीक है? अदरवाइज आप अपना यूज कीजिए चैट बॉक्स का ऑप्शन, ठीक है? तो वहां सबको दिखता भी है, प्रॉब्लम जिसकी होती है वो आपको सबको मालूम होती है कि इसने ये पूछा, तो हो सकता है मेरी प्रॉब्लम भी वही हो बच्चे की दूसरे वाले की, ठीक है? तो ऐसे ही आप लोग यूज कीजिए। तो अब यहाँ डायग्राम आप जो देख रहे हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखिए, डायग्राम में हम लोगों ने P फोर्स अप्लाई जैसे किया तो आपका जो लेंथ था वो L से हो गया L प्लस डेल L, मगर लेंथ तो चेंज हो गया, मगर क्या हुआ, डायमीटर क्या हुआ, डायमीटर कम हो गया। कौन बताएगा डायमीटर कम क्यों हुआ? कौन बताएगा डायमीटर कम क्यों हुआ? अनुराग बताएं। कृष्णकांत बताइए बेटा, फिर आप बताइए। हेलो हेलो, आवाज तो आ रहा है प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है? बताएं बेटा, डायमीटर में कमी क्यों आई? फोर्स की वजह से? सुन लो दिव्यांश, फोर्स की वजह से नहीं, आपने फोर्स अप्लाई किया तो आपके पास जो रॉड थी, सर्कुलर रॉड थी, उसका वॉल्यूम तो उतना ही है ना। अब यदि वॉल्यूम में आप करोगे छेड़छाड़, मतलब यदि वॉल्यूम में चाहते हो आप उसकी लंबाई बढ़ा दूं, तो कहीं ना कहीं दूसरी डायमेंशन की कम होगी। तो वैसे ही यहाँ हो रहा है कि यदि आपने लेंथ चेंज किया तो कहीं ना कहीं आपका डायमीटर कम हो जाएगा, ठीक है? और डायमीटर कम करोगे, डायमीटर बड़ा करोगे, मतलब यदि फोर्स आपका कंप्रेसिव होता तो डायमीटर बढ़ता और लेंथ कम होती, ठीक है? तो यहाँ आपका जो नेचर ऑफ फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका चेंज इन लेंथ और चेंज इन डायमीटर, ठीक है? नेचर ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का नेचर कैसा है, यदि आपका टेंसाइल फोर्स है या कंप्रेसिव फोर्स है। सो हियर वी आर अप्लाइंग द टेंसाइल फोर्स ऑन इट, सो दैट the dimensions will be changed according to L will be changed L plus del L and the diameter will be D minus del D। माइनस क्यों किया मैंने? क्योंकि इसमें कमी आएगी टेंसाइल फोर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कि फाइनल लेंथ मेरा जो हुआ वो क्या हुआ, L plus del L, और फाइनल डायमीटर कितना हुआ मेरा, मतलब फोर्स लगने के बाद वो कितना हुआ आपका, D माइनस del D। जब ये हो गया तो अब मेरा जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो क्या था, मतलब इससे पहले वाला वॉल्यूम क्या था, वो था, यहाँ देखो इसमें L लिख दिया, गलती से L लिख गया ये वाला, इसे आप V कर लीजिएगा। इसे चेंज करता हूँ, रुको सेकंड, इसे मैं चेंज करता हूँ बेटा, एक सेकंड। ये आपका यहाँ वॉल्यूम है, इसे आप VOL कर लो, VOL, ये वॉल्यूम है बेटा, है ना? तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है आपका, VOL क्या है आपका, वॉल्यूम है आपका पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू L। कौन सा वॉल्यूम है? ये वो वॉल्यूम है जो आपका इनिशियली था जब आपने फोर्स अप्लाई उसमें नहीं किया। आफ्टर द फोर्स अप्लाइंग, हमने फोर्स अप्लाई कर लिया, उसके बाद क्या चेंज आया, उसके बाद चेंज आपका ये आया कि फाइनल वॉल्यूम हमारा जो हुआ, मतलब हमारा फोर्स लगने के बाद जो वॉल्यूम हुआ वो क्या होगा, हम लेंथ ये वाली लेंगे और डायमीटर ये वाला लेंगे। लेंथ कौन सा लेंगे, L प्लस डेल L, और डायमीटर कौन सा लेंगे, D माइनस डेल D। तो यदि मैं इसी इक्वेशन में डायमीटर की जगह D माइनस डेल D रख दिया, L की जगह L प्लस डेल L रख दिया, तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इट विल बी पाई बाई 4 D स्क्वायर प्लस डेल D स्क्वायर माइनस 2D इंटू डेल D इंटू L प्लस डेल L। अब इसको भी मैं सॉल्यूशन करूं, इसका भी मैं सॉल्यूशन करूं तो क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपका जो ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है, ब्रैकेट वाली वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मैं क्या फाइंड करूंगा, क्या मिलेगा मेरे को, ये पूरा एक लंबा सा इक्वेशन मिलेगा, है ना? मगर होता क्या है कि जो आपका डेल है, मतलब डेल मतलब चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमीटर जो भी होता है, आपने देखा होगा कि इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो लगभग हमेशा पॉइंट पे निकल के आती है, मतलब 0.002 या 0.005 या 0.05 इस तरह की निकल के आती है, मतलब वो 1 से कम होती है, एटलीस्ट आपने देखा होगा। जब आपकी वैल्यू बहुत कम आती है तो अब यदि दो वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे एक साथ, डेल डेल वाली को, मतलब डेल डी इंटू डेल कर दिया आपने, या डी डेल डी स्क्वायर कर दिया आपने, तो क्या होगा, वो आपकी वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी, मतलब वो इक्वलेंट टू 0 मान लेंगे उसे हम, ठीक है? तो हम इसे क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग द प्रोडक्ट एंड हायर पावर ऑफ टू स्मॉल क्वांटिटीज। तो यहाँ आपका जो डेल डी स्क्वायर हो रहा है या डेल एल स्क्वायर हो रहा है या डेल डी इंटू डेल एल हो रहा है, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो टर्म नेग्लेक्ट करने के बाद जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, देखिए
मैंने क्या क्या नेगलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर नेगलेक्ट करने में क्या क्या, देखो ये वाला टर्म मैंने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। मुझे यहाँ से सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला लिया, मेरे को डी स्क्वायर इंटू डेल एल लिया मैंने, सिर्फ डी स्क्वायर इंटू एल ले सकता हूँ मैं। ये डेल डी स्क्वायर मैंने हटा दिया यहाँ से, डेल डी स्क्वायर वाला हटा दिया यहाँ से, ये वाला टर्म ये मैंने यहाँ से हटा दिया, तो ठीक है। उसके बाद मैं ये वाला टर्म भी हटा दूंगा यहाँ से, डी स्क्वायर डेल डी स्क्वायर इंटू एल वाला, ये वाला भी हटा दूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। और ये वाला टर्म भी मैं हटा दूंगा यहाँ से, नहीं ये तो रखूंगा कि उसमें डेल एक ही बार आ रहा है, इसमें डेल एक ही बार आ रहा है, तो इसमें ये रखूंगा मैं। इसमें डेल 2 बार आ रहा होगा, उसे हटा दूंगा, ठीक है। और तीसरा मेरा रहेगा ये वाला डी स्क्वायर इंटू डेल एल, इसमें भी देखो डेल 2 बार आ रहा है, ये हटा देंगे हम लोग। यहाँ भी डेल 2 बार आ रहा है, इसे हटा देंगे हम। तो क्या क्या हटाएंगे, देखो मैं नोट करता हूँ इसे हटाने के लिए कि मुझे क्या क्या यहाँ से रिमूव करना है। तो देखिए मुझे यहाँ पर डेल डी स्क्वायर आ रहा है, ये टर्म हट जाएगा, मेरा पूरा हट जाएगा, मैं इसे पूरा हटा दूंगा यहाँ से। इसमें देखिए डेल आपका सिर्फ एक बार आ रहा है, तो इसे रखेंगे हम, इसे हम रखेंगे, इसे हम रखेंगे, इसे हम रखेंगे और इसको भी हम रखेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर डेल स्क्वायर इंटू डीएल, ये एक ही बार आ रहा है इसमें डेल, तो इसमें रखेंगे हम। यहाँ आ रहा है डेल स्क्वायर मतलब ये आपका क्या होगा, नेगलेक्ट होगा, ये वाला टर्म नेगलेक्ट करेंगे, ये हटा देंगे यहाँ से। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी डेल एल और डेल डी दोनों आ रहे हैं, तो इसे भी हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो नेगलेक्ट वाले को मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये मैंने क्रॉस कर दिया नेगलेक्ट वाला, ये क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया और ये वाला क्रॉस कर दिया। तो अब जो टर्म मेरे पास बचे हैं मैं वो टर्म यहाँ पर लिख दूंगा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया प्रोडक्ट को, स्मॉल क्वांटिटी के प्रोडक्ट को, और जो हायर पावर्स थी मतलब स्क्वायर में जो पावर थी उनको मैंने यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया है। सो आफ्टर द नेगलेक्टिंग वी कैन गेट दिस इक्वेशन, ये आपको मिलेगी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का यूज कैसे करना है, देखिए आपको, हम जानते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, ये आपने निकाला वो क्या निकाला है, फाइनल वॉल्यूम निकाला है ना, ये आपने जो निकाला वो क्या है, फाइनल वॉल्यूम आपका। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम आपका होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, ये तो होता है। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है बेटा, बताओ जरा क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम। एक सेकेंड उत्कर्ष, क्या होता है बेटा उत्कर्ष मिश्रा बताएं, उत्कर्ष मिश्रा बताएं बेटा कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है आपका। सिंपली चेंज इन वॉल्यूम आपका होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। उदय भानु सही बताया बेटा। तो अब यहीं से मैंने इसे सॉल्व किया, चेंज इन वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम में देखो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू ये थी और ओरिजिनल वॉल्यूम की वैल्यू ये थी, मैंने इनको रखा और सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिला, इसे मैंने रखा सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला, ये मिला, ये वाली वैल्यू मिली। क्लियर है सबको, क्लियर है क्या ये वाली बात। क्लियर है ना बेटा, सुनाओ। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या होता है आपका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है। चेंज इन वॉल्यूम सर ये क्रॉस के निशान आपने लगाए हैं, ये किस लिए लगाए हैं। मैंने उन क्वांटिटी को रिमूव कर दिया जो कि आपका स्मॉल थी, या तो वो उनका पावर लगी हुई थी इन पे, या तो वो स्क्वायर में थी, या कोई दो स्मॉल क्वांटिटी एक साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। ठीक है अंकित, यस सर। जैसे डेल हो रहा है, डेल कई बार आ रहा था, यदि डेल का 2 बार यूज हो रहा है तो हटा दो पूरी इक्वेशन को, उसमें से उस टर्म को हटा दो। यदि डेल का स्क्वायर हो रहा है तो उस टर्म को भी हटा दो। फिर ये हम भी नहीं लिखे ना, तो नहीं आप लिखने हैं, आपको लिखकर क्रॉस करने हैं। ये जो लाइन में लिखी है ना लास्ट में, यहाँ पर नेग्लेक्टिंग द प्रोडक्ट एंड हायर पावर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, तो इसको लिखने का मतलब मेरा यही है कि आपको वहां से वो चीज रिमूव करनी है, तो आप उसे कट कीजिएगा। कि तो अब मैं चल रहा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा आपका, इट विल बी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इट विल बी डीवी अपॉन वी। तो डीवी में निकाल दिया, चेंज इन वॉल्यूम में निकाल दिया, तो मेरा ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम तो मेरा क्या है, वही तो है पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल तो है ही। तो मैंने बस वही किया, तो यहाँ से पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 कट गया, और जो मेरा यहाँ से सॉल्यूशन हो सकता है वो मैंने सॉल्यूशन करके देखा। तो देखिए इसमें आप डी स्क्वायर इंटू डेल एल
अपॉन डी स्क्वायर इंटू एल था, तो यहाँ से डी स्क्वायर कट जाएगा, तो अब क्या होगा, डेल एल अपॉन एल हो जाएगा। और अगले इस वाले में क्या होगा आपका, ये एल से एल कट जाएगा, ये 2d से d कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2 डेल डी अपॉन डी। तो अब समझ में आया कुछ यहाँ से, डेल एल अपॉन एल क्या होता है, डेल एल अपॉन एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हाँ होता क्या है, लीनियर Strain। स्ट्रेन, हाँ लीनियर सर, स्ट्रेन, लेंथ में चेंज आया था लीनियर स्ट्रेन। और Okay. डेल डी अपॉन डी क्या हुआ आपका, लेटरल डेल डी। स्ट्रेन। डेल डी मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर क्या होगा आपका, लेटरल स्ट्रेन होगा ना, यस सर। है ना। तो ये यहाँ पर 2 क्यों आया, क्योंकि देखो मैंने x तो मान लिया, ये तो मान लिया एक डायरेक्शन x, l वाली मान लो एक डायरेक्शन मान ली, x मान ली, y और z कहाँ होंगे, y और z तो आपका अपोजिट होंगे ना, इसके डायमीटर के अगेंस्ट होंगे ना आपके, है ना। इसलिए क्या हुआ आपका यहाँ पर 2 आया, क्योंकि डायमीटर में चेंज आपका दोनों तरफ बराबर ही आएगा, चाहे वो z में आए चाहे वो y में आए, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये 2 डेल डी अपॉन डी हो जाएगा। तो इट विल बी where del L upon L the strain in length and del D upon D is the strain in diameter. So it will be volumetric strain will be equal to change strain in length minus twice of the strain in diameter. तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा इस तरीके से। तो जब आपको सर्कुलर बार के लिए फॉर्मूला यूज करना हो, जब आपको सर्कुलर बार के लिए फॉर्मूला यूज करना हो, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, strain in length minus twice of strain in diameter। क्लियर है, यस सर। ठीक है। जैसे हम लोग वहां कर रहे थे ना 1 माइनस 2 म्यू, तो वो क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे x और y के लिए, सॉरी y और z के लिए, मगर यहाँ तो y और z दोनों में डायमीटर बराबर रहेगा, जो डायमीट्रिकली कोई चीज है, सर्कुलर कोई चीज है, तो सर्कुलर में क्या होता है, डायमीटर उसका आप चाहे y डायरेक्शन पर नापो चाहे जेड पे नापो, दोनों बराबर आएगा। हाँ लेंथ में चेंज हो रहा है, तो डेल एल अपॉन एल को पहले ले लिया, और माइनस 2d अपॉन डी विल बी लेटरल स्ट्रेन ऑफ दैट फोर्स, ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स। तो ये समझ में आ गया आपके, जी सर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। किसी का कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो मुझे आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने सबने, कितने जी लोगों ने सर। नोट कर लिया है, कितने लोगों ने नोट कर लिया है, जी अभी सर। नहीं किया सर। अभी नहीं किया। कौन कौन नोट कर रहा है, वीडियो ओपन करो अपना, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, सभी लोग अपना वीडियो ओपन करो पहले, एंड आई हैव आल्सो ओपन माय वीडियो। यस स्टूडेंट, बताएं किस किस का हो गया। अंकित कर रहे हैं, उदय भानु कर रहे हैं, थोड़ा और बड़ा करता हूँ इसे। सर ये पहले वाला ये रहा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेगुलेट रेक्टेंगुलर बार वाला, और सर ये वाला ये रहा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप और लोग सर बहुत इतने अच्छा सारे ये नोट्स हैं, ये सब सारे नोट्स हैं सर ये। मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा दिया मैंने। यस सर, बहुत नोट्स बना दिए मैंने, पूरे नोट्स बनाए हैं सर, ये देखो अच्छा सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ये अंकित, मतलब अंकित आप इतना कर रहे हो, बहुत अच्छा है, वेरी गुड अंकित। तो सारे बच्चे यदि ऐसे करते रहें, मेक श्योर के सोम का जो लोग बच्चों के सीनियर्स, आपके जो सीनियर हैं उन लोगों के दिमाग में जो हुआ बैठा हुआ है कि सोम सोम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो वो एक तरीके से क्या होगा, आपका दिमाग से निकल जाएगा कि सोम कोई सब्जेक्ट इतना हार्ड भी है। क्यों? यस सर। यस सर। हार्ड नहीं है, बस गिनती के 10-15 फॉर्मूले हैं पूरे सोम में, और उन्हीं फॉर्मूले पे आपको यूज करना है। मोहित चतुर्वेदी लिख रहे हैं, वेरी गुड। ये अनुराग सिंह भी दिखा रहे हैं अपना, शिवम पंधिर कर रहे हैं अपना, वेरी गुड वेरी गुड। अंकित का देख ही चुका मैं। उदय भानु दिखाई रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उदय भानु क्लास किस पे लेते हो, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे? उदय भानु नहीं सर, मोबाइल पे ही लेते हो? यस सर, मोबाइल पे लेता हूँ सर।
ओके 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 ओके। चलिए, और बाकी लोगों का क्या है स्टेटस बेटा? ये कौन बच्चा है इसका कनेक्टिंग कर रहा है ऑडियो? हर्ष कुमार, तनुज, उदय, विष्णु राघव, विष्णु यादव, पवन कुमार, संजय सिंह, जतिन तोमर, हैप्पी, कौशल, अमन पाठक का देख लिया मैंने, हो रहा है अमन पाठक, वेरी गुड अमन पाठक। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम आपको? देखिए फील फ्री हो, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला ही मैं हूं, है ना, और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने का कौन करेगा? मैं ही करूंगा। सर तो जनरली सर थोड़े फॉर्मूले में सर प्रॉब्लम होती है सर, भूल जाते हैं सर बार बार, उनको रिवाइज नहीं, करना देखो पड़ता भूलने का तो यही ये है भूल- कि आप सर यही भूल जाते हैं कि फॉर्मूला कहाँ कैसे लगाएं। यस सर। आप प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल की तो फॉर्मूला जनरली आपको याद हो ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, है ना। यस और अभी तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ गिनती के फॉर्मूले यूज किए हैं, फोर्स अपॉन एरिया, यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन। तीसरा फॉर्मूला यूज किया ही नहीं है मैंने, बताओ अमन पाठक, किया है क्या? फोर्स No, अपॉन sir. एरिया हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया, कैपिटल ई इक्वल टू स्मॉल पी अपॉन स्मॉल ई, और तीसरा आपका स्ट्रेन लेंथ अपॉन चेंज इन ओरिजिनल लेंथ। आप चाहे उसे चेंज इन वॉल्यूम बोल लो, आप चाहे उसे आप चेंज इन डायमीटर बोल दो, चाहे उसे आप चेंज इन थिकनेस बोल दो, उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यस सर। ठीक है, जनरली चेंज मतलब स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, Yes, sir. और यदि आप डायमेंशंस को लेंथ में बात कर रहे हो तो ये आपका लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा, और यदि आप डायमेंशंस को वॉल्यूम में बात कर रहे हो तो इट विल बी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नाम उसका काम से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? नाम उसका काम से जुड़ा हुआ है। वेरी गुड अनुराग सिंह। ठीक है, तो हमेशा एक क्वेश्चन था सर। हाँ बताओ सर आपने बताओ। कुछ दिन पहले न्यूमेरिकल करवाया था, तो उसमें एक रोड थी, उसमें से अलग अलग डायमीटर थे। हाँ हाँ, ट्रेन वाला अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालें, कोई रोड इसका अलग अलग डायमीटर है, तो सर उसके वॉल्यूम निकालने के लिए तो उसकी स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अलग अलग निकालनी पड़ेगी हर रोड के लिए सर? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप यदि वॉल्यूमेट्रिक चेंज का निकालोगे तो आपको सेपरेटली उसे, जैसे हमने अलग अलग फोर्स एनालिसिस की थी उसकी टेंसाइल के लिए, वैसे ही आपको वॉल्यूमेट्रिक के लिए भी उसे अलग अलग ही सेपरेटली निकालना ही पड़ेगा। ओके ठीक है, ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा, यदि सिलेबस में होगी तो पक्का दूंगा, कराऊंगा भी। ठीक है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ अजय कुमार। कुछ बच्चे बोलते नहीं है, जनरली क्लास का यूज नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है सब्जेक्ट से रिलेटेड? कोई भी प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम? अच्छा, जो वीडियो वगैरह आपको शेयर की जाती है उन्हें आप प्रॉपर्ली देखते रहिए, ठीक है? ओके सर। ओके सर, ओके। तो थैंक यू, Yes, sir. थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्लास बहुत अच्छी रही आज की। चलिए मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, एंड नाउ आई एम गोइंग टू लीव दिस क्लास।